Hello students, as per the orders of Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training Chandigarh, I am going to deliver a lecture for Diploma Electronics as well as Electrical students of 5th semester. The subject name is Programmable Logic Controllers. This subject is mainly common with both the trades. So in this lecture, I will cover some of the basic concepts that are related with PLC. So the topic which we will discuss in today's lecture is basic introduction of PLC and familiarization with the current industrial process. So these are some points which we will get to know after we complete our presentation. First, we have the basic concept of PLC. Second is the history of PLC. That is why the PLC is designed. Working of relay and its types, because PLCs are used over relays, so you should have knowledge about relays. So in this session we will also discuss this. And the next thing is need of PLC over relay logic, a basic instrumentation process, industrial instruments and control loops. My main motive in this during this session will be to let you introduce with the industrial equipments or instruments that are used to make a process from to convert a process from manual to automatic. So during this session we will also discuss one process that converts a manual process to automatic. Okay, so this is a basic introduction. It is a digitally operating electronic apparatus which uses a programming memory for the internal storage of instructions and for implementing specific functions such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic to control various types of machines or process through digital or analog modules. In general, we can say कि जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है उसका पर्पस क्या था कि जो एक मैनुअल प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन तक लेके जाना। ठीक है, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं जैसे मशीन की वर्किंग को कंट्रोल करना, ठीक है, और किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन है उसको कंट्रोल करना है ऑटोमेशन के थ्रू। और अगर हम जनरल कहें तो ये पीएलसी इज अ टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग much functions that are similar as to computer but imposed on industrial environment. Okay, there is a brief history. It is developed to replace relays in late 1960s. Here you can see, यहाँ पे आप जो एक डायग्राम देख रहे हो, this is the diagram which contains the figure of a PLC. Okay, from this figure it is clear that it is a type of module. Okay, it is a kind of module which contains a lots of wiring. Okay, you can see here the wiring of the module. Okay, and it is developed to replace the relays in late 1960s. The first commercial and successful PLC was designed and developed by Modicon. सबसे पहले जो PLC डेवलप की गई थी that is developed by company Modicon and Dick Morley was considered as the father of PLC. Okay, अब जब नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए साथ में इसके,
तो उसने इसकी फंक्शनिंग को और भी सुपीरियर कर दिया। अब आगे हमारे पास इन 1970s जो था, द माइक्रो प्रोसेसर बिकेम अ रियलिटी एंड ग्रेट इनहांस्ड द रोल ऑफ पीएलसी। दैट मीन्स कि इन 1970s में इनका थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर बिकेम रियलिटी एंड ग्रेटली इनहांस्ड द रोल ऑफ पीएलसी, परमिटिंग इट टू इवॉल्व फ्रॉम सिंपली रिलेट टू द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एज इट इज टुडे। ठीक है, तो थोड़ा एवोल्यूशन हुई इसकी पीएलसी की, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का जो एक इरा था वो स्टार्ट हो चुका था 1970 के बाद, तो ये ज़्यादा इसकी यूजेज शुरू हो गई। अब सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ सम फेमस कंपनीज विच आर मेकिंग पीएलसी। देयर आर द लिस्ट ऑफ सम कंपनीज विच आर in the field of automation. One is Siemens S7. The Siemens S7 is the name of company, and the next we have write the Semantic Manager. This is a software which we use for this purpose. Microwin for S7 200 PLC. Similarly, Delta. Delta is also the company which is comes with the WPL software, and the Allen Bradley comes with the software RS Logics. ABB is comes with the automation builder, Mitsubishi with MEL SEC, Schneider is with Zeliosoft, Omron with CX programmer. It means कि जो PLC है उसको प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ओके, कंपनी ने अगर पीएलसी डिजाइन किया है देन उसको प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं उनके नाम। ठीक है, इट इज अ कंप्यूटर। जैसे अब कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हो ना, सिमिलरली हम इसको भी प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, टू कंट्रोल सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीएलसी। अब ये जो पीएलसीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि रिलेज के ऊपर यूज करते हैं, रिले की जगह पे यूज कर रहे हैं इसको एक तरह से। ठीक है, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉम्पैक्ट पीएलसी एंड मॉड्यूलर पीएलसी। ठीक है जी। अब इसमें कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे आप ये एक देख रहे हो डायग्राम, इसमें एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, पावर सप्लाई है, कंट्रोलर है। ठीक है, दीज आर दी सम आप कह सकते हो इसके ब्लॉक्स हैं, दीज आर दी ब्लॉक्स ऑफ एन पीएलसी। ओके, अब विद इन अ सिंगल केस, अगर ये सारे सिंगल केस में इन बिल्ड हों सब कुछ, तो उसको हम कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी कह देते हैं। मॉड्यूलर में क्या होता है कि मॉड्यूल में मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की प्रॉपर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि दिस टाइप ऑफ पीएलसी परमिट्स मल्टीपल एक्सपेंशन थ्रू मॉड्यूल्स, hence referred to as modular PLC. Input-output components can be increased. It is easier to use because each component is independent of each other. अब क्या है कि जो PLC का जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि अगर हमने अब इसकी PLC का जो डिफाइन करते हैं हम PLC को, इट इज बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल। अगर हम इसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह की पीएलसी को हम मॉड्यूलर पीएलसी में इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉम्पैक्ट में जो है वो एज इट इज़ उसके मॉड्यूल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब कि उसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स फिक्स होती हैं, उसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलर पीएलसी को हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इट। एंड पीएलसी आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब इसकी वर्किंग जो है पीएलसी की, वो थ्री टाइप्स के बेस पे चलती है। एक तो है रिले आउटपुट बेस्ड, ट्रांजिस्टर एंड ट्राइक आउटपुट पीएलसी। जो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई इनपुट पे हम कुछ स्विच लगाते हैं तो वो एक्चुएट या कुछ उसकी जो ऑन ऑफ होती है, स्विचिंग होती है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो रिले ही वर्क कर रही है इसके अंदर। ठीक है, तो वो टाइप्स में डिफाइन किया होता है कि क्या ये रिले टाइप का है, क्या ये ट्रांजिस्टर टाइप का है, और यहाँ ये ट्राइक टाइप का है। ठीक है, रिले टाइप जो है वो जो है कि वेल सूटेड है एसी और डीसी दोनों के लिए, बिकॉज रिलेज जो होती हैं दीज आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग एसी एज वेल एज डीसी, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है ना। अब रिले लॉजिक पहले जो हम पहले बात करते हैं कि जो रिलेज यूज हम करते थे इन प्रीवियस ईयर्स, सो उसमें क्या डिसएडवांटेज थी, तो हम क्यों पीएलसी की ओवर गए। ठीक है, ये आप सर्किट पूरा एक डायग्राम देख रहे हो, इट इज अ रिले वायर्ड स्ट्रक्चर, ये हार्ड वायरिंग है।
इसमें क्या किया कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल सिस्टम है, एक एक रिले जो है दैट इज कंट्रोलिंग सम प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, एंड उसकी वायरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड बाय मीन्स कि अगर कोई सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है कंट्रोल करने के लिए, तो आपको इसकी वायरिंग को अगर कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो सर्च करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अब रिले लॉजिक क्या है? हार्ड वायर्ड कंट्रोल सिस्टम यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, स्विचेस, टाइमर्स, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स, मोटर्स एंड एक्चुएटर्स, दीज आर ऑल ओके इंक्लूडेड हियर। ट्रेडिशनल मशीन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन जो है दैट वाज accomplished यूजिंग रिले लॉजिक। पहले हम रिले लॉजिक के साथ ही सिस्टम को फंक्शंस को कंट्रोल करवाते थे। अब अगर हम इसके बेस पे कुछ ऑटोमेशन करना चाहते हैं रिले के बेस पे, है ना, तो इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वायरिंग। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कितना वायरिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर ही है ना। तो इतने में आप अगर वायरिंग में कुछ ढूंढना चाहे फॉल्ट, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड और ट्रबल शूट। ओके, फाइंड अ फॉल्ट और ट्रबल शूटिंग। ओके, एक तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। अब सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स विद इम्प्लीमेंटिंग रिले लॉजिक क्या होगी? फर्स्ट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्विच बोर्ड स्पेस। एक तो बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट है जैसे आप देख रहे थे लास्ट स्लाइड में, एंड सेकेंड इज द इंस्टॉलेशन इज वेरी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स कि आपको इसके ऊपर लेबर भी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू वायर। ओके, एंड थर्ड इज ट्रबल शूटिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये तो ऑब्वियस ही है, अगर वायरिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है देन टू फॉल्ट दी फाइंड द फॉल्ट इन दिस वायरिंग, कुछ वायरिंग में अगर फॉल्ट हो जाता है देन इट इज really difficult for any troubleshooter. Okay, next is the modifications to the control functionality are complicated and seriously tedious. अगर suppose हमने कुछ modify करना हो इसमें प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, तो वो मॉडिफिकेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले हमें वो प्रोसेस जो कंट्रोल हो रही है जिस भी रिले के साथ, तो हमें पहले उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी कहाँ पे उसका वायर जा रहा है, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम्स थी रिले की, जिसके कारण इसको हमें ओवरकम किया है किसने? पीएलसी। अब मैं थोड़ा रिलेज का आपको वर्किंग समझा दूं। ये आप देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन रिले। ठीक है, इसमें जनरल एक कॉइल कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट देख रहे हो, दिस इज द कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द कॉइल। ओके, normally there are three contacts in the relay, that is common, NO and NC. Common, NO stands for normally open and NC stands for normally closed. Okay, अब here is a one animation of a relay system. अब इसमें हम आपको थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर बता दूं अगर मैं इसको क्लैरिटी से, तो क्या है कि एक कॉइल है और एक कॉन्टैक्ट है, इसको कॉइल कॉन्टैक्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कॉइल को मैंने 6 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड की है और साथ में एक स्विच लगाया हुआ है। ठीक है, सीरीज में एक स्विच लगाया है। जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो जो 6 वोल्ट डीसी सप्लाई है इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द कॉइल। कॉइल में फ्लो करने से क्या होगा कि एक मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और साथ में मैंने दो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे रखे हैं कि एक है एनसी और एक है एन। एनसी कॉन्टैक्ट के साथ एक लैंप ए कनेक्ट किया हुआ है और एनओ के साथ एक लैंप बी कनेक्ट किया हुआ है, और साथ में एक 120 वोल्ट एसी की सप्लाई कनेक्टेड है जो कि लैंप ए और बी को ग्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देख सकते हो कि जब स्विच ओपन कंडीशन में है तो कॉन्टैक्ट जो था वो किस कंडीशन में था? नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में, ये देखिए। और जब ये एनर्जाइज हो जाती है तो कॉन्टैक्ट कौन सी कंडीशन में आ रहा है? ये देखिए, एनओ कंडीशन। ठीक है, दैट मीन्स ऑन प्रेसिंग द पुश बटन जो डीसी सप्लाई के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसने उस कॉन्टैक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसके कारण हमारा कॉन्टैक्ट किसके साथ बना? एनओ के साथ। और इसके करस्पॉन्डिंगली कौन सा हमारा लैंप लगा है? लैंप बी। तो वो एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया इसके कारण। देखिए, ये हो रहा है सर्किट कंप्लीट इस डायरेक्शन में, इस जैसे मैं इसको एरो को बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
सो दिस इज अ जनरल रिले सिस्टम। ये आपको जनरल बताने के लिए था कि रिले वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब आगे टाइप्स आ गई हैं कुछ रिलेज की। दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिलेज, दैट इज एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी एंड डीपीडीटी। कॉइल कांटेक्ट सिस्टम है तो इसमें हम इसको नाम कैसे देते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अब यहाँ पे देखिए आप, वी आर हैविंग सिंगल पोल, दिस इज अवर सिंगल पोल एंड सिंगल थ्रो। थ्रो भी सिंगल ही हो रही है ना यहाँ पे, दैट इज पोल की जो थ्रो है दैट इज आल्सो सिंगल, okay, and this is a coil which will be energized in order to make this throw possible, okay, and next is single pole double throw। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पोल हमारे पास सिंगल है और थ्रो हमारी क्या हो गई, डबल। मींस या तो यहाँ पे ये टच करेगा और यहाँ या तो इस साइड पे जहाँ पे ये अभी प्रेजेंट कंडीशन में है, टर्मिनल बी पे या टर्मिनल सी पे, ओके। सिमिलरली डबल पोल सिंगल थ्रो, दिस इज द डबल पोल एंड थ्रो लेकिन सिंगल ही है। These both throws are electrically कनेक्टेड है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे कॉइल पे सप्लाई देंगे ये दोनों थ्रो एक टाइम पे ही होंगे एक्टिव, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे डीपीडीटी है तो यहाँ पे डबल पोल है, देखिए दो पोल्स हैं और दो थ्रो हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द रिलेज। अब आगे मैंने आपको जैसे कहा कि कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में जो इस कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेशन में ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं वही डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। अब है हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व क्या होते हैं कि जो किसी लिक्विड या वाटर एनीथिंग उसके फ्लो को कंट्रोल करवाते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। अब the definition of a solenoid valve is an electromechanical valve that is commonly employed to control the flow of liquid or gas, okay। अब इसको क्यों यूज करते हैं, in most flow control applications it is necessary to start or stop the flow in the circuit to control the fluids in the system। वही बात है कि हमारे जो हमने किसी सिस्टम के अगर कोई लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करना है तब हम वहां पे इसको यूज कर लेते हैं सोलेनॉइड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। सोलेनॉइड वाल्व्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट्स इन फ्लूइडिक्स, ओके। फ्लूइडिक्स में, फ्लूइडिक्स बाय मींस जहाँ पे फ्लूइड्स यूज होते हैं। दीज आर द कॉमनली यूज्ड टू शट ऑफ, रिलीज, डोज, डिस्ट्रीब्यूट और मिक्स फ्लूइड्स। वही आ गया कि हम इसको शट कर सकते हैं तो लिक्विड फ्लो रुक जाएगा, अगर हम इसको रिलीज कर सकते हैं लिक्विड को, डोज किसी की सिस्टम को डोज करना है आगे प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूट करना है कहीं आगे, या मिक्स करना है फ्लूइड्स को बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ओके। सो यू कैन कंट्रोल इट फॉर दैट पर्पस। अब आगे है हमारे पास इसकी एनिमेशन, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे क्या है कि इसके दो टर्मिनल हैं हमारे पास, ठीक है। उसको हमने सप्लाई प्रोवाइड की, स्विच प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्लंजर है, दिस इज प्लंजर, दिस इज कॉल्ड प्लंजर, दैट मूव्स अप, ओके। तो जो प्रेशराइज लिक्विड है वो आगे पास हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एक मैकेनिकल थिंग है उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करवाया, यू गॉट इट ना, कि जो मैकेनिकल, जो ये मैकेनिकल हो गया ना मूवमेंट, दिस इज अ मैकेनिकल मूवमेंट, दैट इज प्लंजर इज गोइंग अप, so that is being controlled with an electrical signal that is given from here, okay, यहाँ से जो दे रहे हैं। आगे कंट्रोल वाल्व्स होते हैं इंडस्ट्रीज में। कंट्रोल वाल्व्स का भी पर्पस कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट वहाँ पे तो एक यही था ना कि हमारे या तो वाल्व टोटल पूरा ओपन है या पूरा क्लोज है ना। यहाँ पे हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि सपोज हमने 20% वाल्व हमें ओपन चाहिए या 40% चाहिए या 60% चाहिए, किसी प्रोसेस के लिए इतना ही फ्लो चाहिए हमें, तो हम उस जगह पे कंट्रोल वाल्व्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं कंट्रोल वाल्व्स। कंट्रोल वाल्व्स विल बी, उनकी जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। उसमें ये जो गेट वाल्व देख रहे हो आप, ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस मिल जाती हैं। बॉल वाल्व है, ग्लोब है, गेट है, चेक है, बटरफ्लाई है, ठीक है। इसमें नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, और ऊपर जो है दिस इज कॉल्ड दी पोजिशनर।
और यहाँ पे हमने जो ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पे फ्लैंज होता है, ठीक है, विच मूव्स अप और डाउन, ओके, बिकॉज ऑफ द एयर सक्शन, ओके, एयर सक्शन सिस्टम कह सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, एनिमेशन में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो मैंने आपको पहले बताया कि एज पर द रिक्वायरमेंट कि हमें 20%, देखिए अब 0% है तो 0 मिलियम्पियर सिग्नल जा रहा है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग वो इसको 0% ओपन कर रहा है। अगर हम 20% इसको 4 मिलियम्पियर की सप्लाई दे रहे हैं तो वो कितने परसेंट था, 20, अब 40 हो गया, 60, 12 मिलियम्पियर पे 60, 16 पे 80 हो गया, 820 पे 100%। तो जो इसको हम I2P कन्वर्टर्स कह देते हैं जो इसको कंट्रोल करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो I2P कन्वर्टर्स जो हैं वो हैं हमारे 4 to 20 मिलियम्पियर की रेंज का जो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए जो भी लिक्विड हमने फ्लो करवाना है, कंट्रोल करवाना है, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। मेरा मेन मोटिव इसको समझाने का ये है कि सो दैट यू कैन हैव एन व्यू कि जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है। आगे है अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल लूप्स। ये आपका सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंट्रोल लूप्स की बात करें, इसमें आप देख रहे हो कि एक सिस्टम है जो चार कंसेप्ट पे चार स्टेप्स में कंट्रोल करता है किसी प्रोसेस को, दैट इज सेंस, पहले सेंस किया, उसके बाद उसकी कंपैरिजन होती है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है और सिस्टम को अफेक्ट करता है। दीज आर सम स्टेप्स बाय विच एन प्रोसेस वर्क्स, ओके। अगर हम इसको ऑटोमेशन पे करना चाहें, सो इसमें थोड़ा सा आपको ये तो पता ही है, दिस इज आवर कंट्रोल वाल्व, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। दिस इज दी यू कैन से दी I2P कन्वर्टर, ओके, जो कि 4 से 20 मिलियन पेयर के अंदर काम करता है। यहाँ पे हमारे पास है एयर रेगुलेटर फिल्टर और एक सेंसर है जो सेट पॉइंट या प्रोसेस वैल्यू के डिफाइन करेगा। यहाँ पे एक RTD लगाई है, RTD बेसिकली यूज्ड फॉर टेम्परेचर सेंसिंग, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोल्ड वाटर आप दे रहे हो, कोल्ड वाटर को हीटेड वाटर में वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका हमने एक सेट पॉइंट किससे सेंस कर रहे हैं उसको, एक टेम्परेचर RTD डिवाइस से, और वो RTD डिवाइस फर्दर कनेक्टेड है एक कंट्रोलर के साथ, ठीक है, जो कि 4 से 20 मिलियन पेयर की क्या निकालता है, आउटपुट निकालता है, जो किसको जाती है, I2P कन्वर्टर को। वो क्या करेगी, I का मतलब होता है करंट और P का मतलब होता है प्रेशर, तो वो उस करंट को करस्पॉन्डिंग प्रेशर के फॉर्म में सेंड किसको करेगी, कंट्रोल वाल्व को। तो जो वाल्व है वो उसके अकॉर्डिंग ही इनपुट में लेगा स्टीम को, ठीक है, स्टीम को उसके अकॉर्डिंग ही इनपुट पे लेगा ताकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे जो हमने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही रहे, ठीक है। तो एक तरह से ये लूप हो गई। कैसे लूप काम कर रही है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास RTD जो टेम्परेचर को कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है लाइन के, फिर वो सेंस करके कमांड दे रहा है कंट्रोलर को जो कि सेट पॉइंट एक रखा हुआ है कि इतना हमें टेम्परेचर चाहिए लाइन का। फिर आगे से वो कंट्रोल करवा रहा है I2P कन्वर्टर को, I2P कन्वर्टर आगे कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल लूप को, जो क्या कर रहा है, कंट्रोल वाल्व को, जो कि स्टीम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है ताकि कितनी स्टीम यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक लूप बन गई, ये आप देख रहे हो, दिस इज अ लूप, ओके। इसको हम लूप कह देते हैं इंडस्ट्री में। अब आगे है मैग्नेटिक लेवल स्विच। जैसे लेवल कंट्रोल करने के लिए एक गेट वाल्व होता है ना, जो व्हेन लेवल गोज हाई इट इट गेट्स शट ऑफ, है ना, ये ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल में भी लगता है। तो वही सिस्टम है, सिर्फ यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं कि जब लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो मूव करता है और यहाँ से हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलती है। इसमें भी वही कॉमन NO1 NC1, एक तो ये है, या हम यहाँ पे C2 NC2 और NO2 ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यूज करते हैं इंडस्ट्री में।
आगे टेम्परेचर सेंसर है, दिस इज दी आरटीडी, इसको कहते हैं आरटीडी, रेजिस्टिव टेम्परेचर डिवाइसेस। ओके, ये इंडस्ट्री में लगती हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे इस डिजिटल इंडिकेटर में देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज में ये मोस्टली यूज की जाती है। ठीक है, आगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का क्या काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। अब यहाँ पे आप देखिए एनिमेशन में क्या देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है, दिस इज अ पुश सिलेंडर। वो क्या करता है कि जो उसको ये जो कन्वेयर पे पैकेट्स आ रहे हैं मिल्क के, उसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है जो फॉल्टी लग रहे हैं उसको। ठीक है, और वो किससे पता कर रहा है इस चीज को? थ्रू अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो हैं वो लिक्विड को, प्लास्टिक को, ग्लास को, वुड को, ग्रेनुलेटेड सब्सटेंसेस, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको सेंस करवाने के लिए। ठीक है, और इसकी मेन एडवांटेज ये है कि आपको ऑब्जेक्ट को इससे टच नहीं करवाना होता, इट कैन सेंस फ्रॉम सम डिस्टेंस। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि एक डिस्टेंस से हम इसको सेंस करवा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी है इसकी कुछ मेंशन की हुई है यहाँ पे। ये टाइप्स हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के, इंडक्टिव हैं, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी टाइप हैं, कैपेसिटिव हैं, मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, आप देख सकते हो क्या है इसमें, एक प्रोसेस मिक्सर है। ठीक है, जिसमें कि एक सोलेनॉइड वाल्व ए लगा हुआ है। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड वाल्व ए है जनरली क्या कर रहा है, ये देख सकते हो आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोलेनॉइड वाल्व ए लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जब ये ओपन होता है तो लिक्विड इसमें फिल हो रहा है और एम्प्टी सेंसर जो है वो ऑन है। जब ये पूरा फुल हो जाता है तो फुल सेंसर ऑन हो जाता है। फुल सेंसर ऑन होने के साथ सोलेनॉइड ए बंद हो जाएगा और सोलेनॉइड बी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और पूरा लिक्विड ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ मिक्सिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये मोटर क्या कर रही है, जब लेवल फुल हो जाता है तो मोटर उसको मिक्स कर देती है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी प्रोसेस को अगर हमने कंट्रोल करवाना हो पीएलसी से, सो वो हम कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें बहुत एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि वर्क कैसे करती है कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इंडस्ट्री में, प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है, एक हमने कंट्रोल वाल्व यूज किया, सोलेनॉइड वाल्व, एक मैग्नेटिक लेवल स्विच किया यूज, और एक टैंकर वाटर का। ठीक है, यहाँ पे वाटर इनलेट है। अब हमारा मोटिव ये है कि जब यहाँ पे लेवल हाई हो जाए तो वाटर लेवल यहाँ पे जो लगा हुआ है वाटर इनलेट, वो ऑटोमेटिकली वाटर को यहाँ पे स्टॉप कर दे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाले कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एयर लाइन इनपुट पे आ रही है, सोलेनॉइड वाल्व को जा रही है, और जो कि कंट्रोल किसको करवाएगी, कंट्रोल वाल्व को। ठीक है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके ऊपर बेस्ड है, एयरलाइन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक लेवल स्विच है इसको लिंक कर देंगे सोलेनॉइड वाल्व के साथ, सो दैट जब भी ये लिक्विड का लेवल हाई हो जाए तो सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे जो एयर को, इसने एयर प्रोवाइड कर रहा था इसको, कंट्रोल वाल्व को, जिसके कारण ये ओपन रह रहा था, वो क्या कर देगा, इसको फिर बंद करवा देगा। ठीक है, बंद करने से क्या होगा कि जो लिक्विड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा और जो टैंक है वो फुल कंडीशन में शो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द लेक्चर दैट इज ऑन पीएलसी। अब ये जो मैंने आपको सारी बेसिक थिंग्स बताई हैं आज, ये थोड़ा आपको आइडिया प्रोवाइड करेगी कि रिलेज क्या होती हैं, उसको कैसे वर्क करवाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या काम है, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी इंडस्ट्री में प्रोसेस को ऑटोमेशन की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।